حضرت فیصل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الاولیاء کتاب سے صفحہ نمبر ہے 54۔ آپ کا شمار نہ صرف اہل تقویٰ اور اہل ورع میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشائقین کے مقتدی رائے طریقت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے ہر منور و کرامات و ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے، اور آپ ہم عصر آپ کو صالح و مقتدی تصور کرتے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا بصحرا لوٹ مار کیا کرتے۔ آپ قضاؤں کے سرکنا تھے، غارت گری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے اپنی پسندیدہ شے رکھ لیا کرتے۔ اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز عالی تھے بلکہ قدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج از جماعت کر دیتے۔ عجیب واقعہ، ایک مرتبہ کوئی متمول قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک مالدار کے پاس بہت رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر اگر رقم ہی بچ جائے تو بہت اچھا ہے، صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ کو مصلی بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا۔ وہ رقم بطور امانت ان بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلے میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا۔ چنانچہ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے ان بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر غنیمت تقسیم کر رہے۔ اس بیچارے نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں رقم ایک غداف کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فیصل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا جس جگہ رکھ کر گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے اسے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلے میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرغنہ نہیں؟ لٹیروں نے جواب دیا ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں۔ راہزنوں نے کہا کہ نفیلے پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں۔ ڈاکوؤں نے کہا نفیلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ ہو گیا اور حضرت فیصل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صلاۃ والسلام کے ساتھ رہزنی کا کیا تعلق؟ آپ نے پوچھا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب میں عظمت میں سر ہلا دیا تو حضرت فیصل نے یہ آیات تلاوت کی، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالحہ کو اس غلط ملت کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآنی آیات سن کر وہ شخص محو حیرت زدہ رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت باہمت تھے اور جس کارواں میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی اس کو نہیں لوٹتے، اور جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریق ہوئے، اکثر اس کی محبت میں کھلیا ورزی کرتے، نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گائے گائے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے۔ سبق آموز واقعہ، ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ ٹھہرا، اس میں ایک شخص یہ آیات تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائے؟ اس آیات کی تفصیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مارتے مارا۔ آپ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا یہ غاز لگیری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اب وہ وقت آ چکا کہ میں اللہ کی راہ میں چل پڑوں۔ یہ کہہ کر زار و خطار روتے رہے۔ اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ راستے میں فیصل ڈاکیا مارتا ہے، لہذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے راہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھی معافی طلب کی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی اگر تم سامنے والے پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی معذرت ختم کر دی اور کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا بال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہذا اس وقت میرے تکیے کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی
वो आप उठाकर मुझे दे दें ताकि मेरी कसम का कफ़ारा हो जाए। चुनाचा वो थैली उठाकर आपने उसको दी। उसके बाद उसने शर्त पेश की कि पहले मुझे मुसलमान करो फिर माफ़ करो। आपने कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान किया। इस्लाम लाने के बाद उसने बताया मेरे मुसलमान होने की वजह यह है कि मैंने तौरात में पढ़ा था अगर सदक दिली से ताइब होने वाला काग को हाथ लगा देता है तो वो सोना बन जाती है, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं। और आज जब मेरी थैली में मुट्ठी भरी हुई थी और आपने मुझको दी तो वाकई इसमें सोना निकला और मुझे यकीन हो गया कि आपका मदहब सच्चा है। एक मर्तबा आपने किसी से इस्तेदार की कि मैंने बहुत बड़े जराइम में, लिहाजा मुझे अमीर वक्त के पास ले चलो ताकि वो मुझ पर शरई हदूद नाफिज करे। और जब उसने अमीर वक्त के सामने आपको पेश किया तो उसने इंतहाई ताज़ीम और तकरीम के साथ आपको वापस कर दिया। और जब आप अपने घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी तो बीवी ने अज़म से भरी हुई आवाज़ सुनकर ही तस्वुर किया शायद आप ज़ख्मी हुए। जब बीवी ने पूछा कि ज़ख्म कहाँ है तो फरमाया मेरे कल्ब पर ज़ख्म है। बीवी से कहा मैं सफ़र हज पर जाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहो तो मैं तुमको तलाक दे दूँ क्योंकि इस रास्ते में तुम्हें मेरे हमरा बड़ी अजियतें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन बीवी ने कहा मैं कादिमा बनकर हमरा चलूँगी क्योंकि तुम्हारे बरकत नाकाबिल बर्दाश्त है। चुनाचा आपने इन्हें भी शरीक का सफ़र किया। अल्लाह ताला ने रास्ते की तमाम मुश्किलात दूर फरमाई। आपने हज बैतुल्लाह किया। एक रात हारून रशीद ने फजल बर्की को हुक्म दिया कि मुझे किसी दरवेश से मिला दो। चुनाचा वो हज़रत सूफियान की खिदमत में ले गया और दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब हज़रत सूफियान ने पूछा कि कौन है तो फजैल ने जवाब दिया कि हारून रशीद तशरीफ़ लाए। सूफियान ने फरमाया काश मुझे पहले से इल्म होता तो मैं खुद इस्तकबाल के लिए हाजिर होता। ये जवाब सुनकर हारून रशीद ने फजल से कहा मैं जिसे दरवेश को ढूंढ रहा हूँ इसमें वो सफ़ नहीं, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। फजल ने अर्ज़ किया कि आप जिस किस्म के बुजुर्ग की जस्तजू में हैं वो साहब सिर्फ फैसल बिन अयाज है। ये कहकर हारून को फैसल बिन अयाज के यहाँ ले गए। उस वक्त आप तिलावत फरमा रहे थे। क्या लोग ये समझते हैं कि उन्होंने बुरे काम किए हम उनको नेक काम करने वालों के बराबर कर देंगे। ये सुनकर हारून ने कहा इससे बड़ी नसीहत और क्या हो सकती है। फिर दरवाजे पर दस्तक देने के जवाब में हज़रत फैसल ने पूछा कौन है तो फैसल बरबक्की ने कहा हारून रशीद। आपने अंदर ही से फरमाया कि इनके मेरे पास क्या काम, मुझे इनसे क्या तवस्सु, मेरी मशगूलियत और आप लोग खारिज ना हो। लेकिन फजल ने कहा औलाद अमर की इताअत फ़र्ज़ है, औलाद अमर की इताअत फ़र्ज़ है। आपने फरमाया मुझे असियत न दो। फिर फजल ने कहा आप अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं देते तो हम बिला इजाज़त दाखिल हो जाएंगे। आपने फरमाया कि मैं तो इजाज़त नहीं देता, बिला इजाज़त दाखिले में तुम मुख्तार हो। जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो आपने शमा बुझा दी ताकि हारून रशीद को शक्ल नजर न आए। लेकिन इत्तेफाक से तारीकी में हारून का हाथ आपके दस्त मुबारक पर पड़ गया तो आपने फरमाया कि कितना नर्म हाथ है, काश जहन्नुम से निजात हासिल कर सके। ये फरमाकर नमाज में मशगूल हो गए। और फिर आते नमाज के बाद जब हारून ने अर्ज़ किया कि आप कुछ इरशाद फरमाए तो आपने फरमाया तुम्हारे वालिद हुजूर अकरम के चचा थे। और जब उन्होंने हुजूर से इस्तदा की कि मुझे किसी मुल्क का हुक्मरान बना दीजिए तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे नफ्स का हुक्मरान बना देता हूँ क्योंकि दुनियावी हुकूमत तो रोज़े महशर बजाय नदामत बन जाएगी। ये सुनकर हारून ने अर्ज़ किया कि कुछ और इरशाद फरमाया। आपने फरमाया जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ को सुल्तानत हासिल हुई तो उन्होंने कुछ अक़ल लोगों को जमा करके फरमाया मेरे ऊपर एक ऐसा बार कर डाल दिया गया है जिससे छुटकारे की कोई सबील नजर नहीं। इनमें से एक ने मशवरा दिया कि आप हर सन रसीद मोमिन को बाप की जगह तस्वुर करें और हर जवान बमज़ल भाई के और बेटे के तस्वुर करें और औरत और माँ बहन बेटी समझे उन्हें रिश्तों के मुताबिक उनसे हस्न सलूक से पेश आए। हारून रशीद ने फिर अर्ज़ किया कि कुछ और नसीहत फरमाए तो आपने फरमाया पूरी ममलकत इस्लामिया के बाशिंदों को अपनी औलाद तस्वुर कर, बुजुर्गों पर मेहरबानी कर, छोटों से भाइयों और औलादों की तरह पेश आ। फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुम्हारी हसीन और जमील सूरत नाद जहन्नुम का ईंधन न बन जाए क्योंकि महशर में बहुत सी हसीन सूरत का नाद जहन्नुम में जाकर हलिया तब्दील होगा और बहुत से अमीर असीर होंगे अल्लाह से खाइफ रहते महशर में जवाबदही के लिए हमेशा जो कस रह करते। हज़रत फजल ने एक मरतबा अपने बच्चों का आगोश में लेते हुए प्यार कर रहे थे कि बच्चे ने सवाल किया कि आप मुझे अपना महबूब तस्वुर करते हैं। फरमाया बेशक। फिर बच्चे ने पूछा अल्लाह ताला को भी महबूब समझते हैं, फिर एक कल्ब में दो चीज़ों की महबूबियत कैसे जमा हो गई। ये सुनते ही बच्चों को आगोश उतार कर मसरूफ़ इबादत हो गए।
मैदान अरफात में लोगों की गरिया वर्जी का मंजर देखकर फरमाया, अगर इतनी गरिया वर्जी के साथ किसी बकील से भी दौलत तलब करे तो शायद वो भी इनकार न करे। लिहाजा मालिक की हकीकी इतनी गरिया वर्जी के बाद मग़फ़िरत तलब करने वालों को यकीनन माफ़ कर देगा। आपने हज़रत अब्दुल्ला को सामने आता हुआ देखकर फरमाया, जिधर से आए उधर ही लौट जा, वरना मैं लौट जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी आमद की गयात सिर्फ ये होती है कि हम दोनों बैठकर बातें करें। एक मरतबा आपने किसी से हाज़िर खिदमत होने की वजह दरियाफ़्त की। उसने अर्ज़ की कि मेरी आमद का मकसद आपकी शीरी बयानी से महफूज होना है। आपने कसम खाकर फरमाया, ये बात मेरे लिए बहुत ही वहशत अंगेज़ है, क्योंकि तुम्हारी आमद का मकसद सिर्फ इतना है कि हम दोनों झूठ और फरेब में मुब्तला है, लिहाजा यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। एक मरतबा एक बच्चे का पेशाब बंद हो गया तो आपने दुआ फरमाई, अल्लाह तुझे मेरी दोस्ती की कसम इसका मर्द दफ़ा फरमा दे। चुनाचा उसी वक्त बच्चा सेहत याब हो गया। अपनी दुआओं में अक्सर ये फरमाया करते कि अल्लाह तेरा दस्तूर तो ये है कि अपने महबूब बंदों और उनके बीवी बच्चों को भूखा नंगा रखता है और उनका ऐसी ग़ुरबत देता है कि घर में रोशनी तक का इंतज़ाम नहीं होता। फिर भला तूने मुझे दौलत क्यों अता फरमाई? क्या मैं तेरे महबूब बंदों का मर्तबे का फ़र्द नहीं? कभी ये दुआ करते कि मुझे अदाब से निजात देकर मेरे हाल पर रहम फरमा, क्योंकि तू अलीम मुदस्सत्तार है। मशहूर है कि आपको 30 बरस किसी ने भी हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन जब आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ तो मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया, चूँकि अल्लाह ताला इसके मरने से खुश हुआ, लिहाजा मैं भी उसकी रज़ा में खुश हूँ। किसी कारी ने बहुत खुश अलहाफ़ी के साथ आपके सामने कोई आयत तिलावत की तो आपने फरमाया, मेरे बच्चे के नज़दीक जाकर तिलावत करो, लेकिन सूरह अल-क़ारा हरगिज़ मत पढ़ना, क्योंकि खशियत इलाही की वजह से वो ज़िक्र क़यामत तक सुनने की इताअत नहीं रखता। मगर कारी ने वहाँ पहुँचकर यही सूरत क़िरात की और आपके साहबजादे चीख मार कर दुनिया से रुखसत हो गए। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आपने फरमाया, मुझे पैगम्बरों पर इसलिए रश्क नहीं आता कि उनके लिए भी क़ब्र क़यामत और जहन्नुम बिलसरात का मरहला है। वो नफसी की मंजिल से गुजरेंगे और मलाइका इसलिए रश्क नहीं आता कि वो इंसानों से ज़्यादा खौफ ज़रा रखते। अलबत्ता उन पर रश्क ज़रूर आता है जो उन्होंने शिक्म मादर से जन्म ही नहीं लिया। इंतकाल के वक्त आपकी 2 साहबजादियाँ मौजूद थी। चुनाचा आपने ज़ौजा से फरमाया, मेरे बाद इन दोनों को कोई अबू कुरैश पर ले जाकर अल्लाह ताला से अर्ज़ करना कि फैसल ने ज़िंदगी भर इन्हें परवरिश किया और जब वो ख़बर में जा चुका है तो ये दोनों तेरे सुपुर्द है। चुनाचा बीवी ने वसीयत पर अमल किया। अभी दुआ में मशगूल थी कि सुल्तान यमन उधर निकला और उसने दोनों साहबजादियों को अपनी कफ़ालत में लेकर उनकी वालिदा से इजाज़त के बाद अपने दोनों लड़कों से उनकी शादियाँ करा दी। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाया करते कि हज़रत फैसल की मौत के वक्त और जो समा हस्न व मला में गर्क थे, ये था हज़रत फैसल का वाक़या तज़किरतुल औलिया किताब से। अल्लाह से दुआ है कि हमसे बयान करने में जो भी गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए और आप लोगों से इल्तिजा है कि हमारे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर